राइटर ने जो चीज़ें छेड़ दी हैं वो हमने शायद नहीं देखी पहले। एक तो डेथ को वर्बलाइज करना, हाँ, कि एक आदमी का एक जो फियर होती है डेथ की या क्या होगा क्या, वो खैर मैंने नहीं देखा। मे बी यू नो इन द गुड ओल्ड डेज जब हमारे पीटीवी के टाइम पे मे बी देयर वाज सर्टेन ड्रामास बिकॉज यू नो वी हैड दीज अमेजिंग राइटर्स। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग। फिर ये आपको बताना कि डेथ के बाद एक औरत का एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर हमारे जानने वाले थे, तो उनके किराएदार जो थे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड ही वाज अ टीचर एंड वेरी वेरी लवली कपल। आई रिमेंबर मीटिंग दम, 2 छोटी बेटियां थीं। और उनके डेथ के बाद उसकी जो फैमिली थी, हस्बैंड की फैमिली, टोटली डिसोन्ड द वाइफ एंड द डॉटर्स एंड फ्रॉम सी व्यू दे पता नहीं कहाँ they had to go and shift because you know there was, but then I found out later on that she could make children's clothes, so she started making those clothes and then eventually had a stall in Juma Bazaar या अतवार बाजार यार पहले में। सिलाई कढ़ाई होती थी और हाँ, इसीलिए होती so थी वही बिकॉज मैं यू कह हैव रही हूँ वन ना कि एक थिंग। स्किल होना ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन एक स्किल होना, मीनिंग बेकिंग हो, पार्लर का काम हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ से जो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं हो जाते। मीनिंग होता है ट्रबल, आई नो देयर लॉट ऑफ यू नो, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स हैं टू गेट अ प्रिंस। Yeah, so it's a Prince saying, being the कि you go money. through a lot to get to some place, ना? So वो तो है। Then how does a child what you may call it deal with death? Yeah. That again, I don't think we've seen We have that. seen I it. think that scene I last time I said जो फिर क्या कहते हैं आपका फैमिली को प्रिपेयर करना, बिकॉज हम जब someone, if they know that they're dying or something like that and you know that the family is not, उसको prepare करना, instead of saying कि नहीं बात नहीं करनी, नहीं don't talk about it, no don't do this, no don't do that. No, the practical thing is, देखो inevitable तो है, we all have to die. Yeah. It's just that someone is going to go before you and someone is going to go after you. So preparing a family for that, you know, so these are a lot of things that have not been, I haven't seen it. True that. Yes. And we don't even reflect those as a society also. Exactly. So it's new also. Yeah, to us exactly. As well. So one of the main issues I had with this play was glorifying a villain. Whether he was a villain, अगर आपने उसको villain नहीं लिखना था, तो शुरू से हमें उसकी endearing qualities के बारे में। This is one thing I was also thinking कि अगर एक बंदा आपने इतना पोटेंट किया और उससे इतने उसके रिप्रिकॉशंस इस लड़की पे, अब वो है ही नहीं। Exactly. So no, and then he becomes the good guy, Yeah, or good he guy. becomes the hero in the eyes of everyone. So that was the only thing. I think वो भी अगर करना था, तो that could have been a stage that you could have taken us through. Why does he become like that? Is it a possibility? So उस लिहाज से, but somehow or the other, I don't know why I didn't attach myself to this play. I'm slightly removed from it. और मुझे ये 2 episodes तो you know, okay. I mean, like, a lot should have happened, because I think it should finish now, because it's a very depressing play. But needless to say, very good points that have been raised, because I think we are approaching the end, hopefully. So I will give it 1 thumbs up, because the acting level and everything else is really brilliant in this. But right now the story was a little हल्का। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड। सोना, क्योंकि बाप ने कहा था जब मैं याद आऊँ तो जैकेट पहन के सो जाना है, तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा। उधर मैं भी रोई, थोड़ा सा ज़रा सांस लिया, आगे चले तो शुक्र है इसके ऑफिस के सीन्स शुरू हुए जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। बिकॉज एक बात आप ना भूलें कि अब जो इसकी जो कहानी है पर्सनल मलिका की ख़त्म हो गई, अब प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है, पार्ट 2 ऑफ पामाल। क्योंकि स्टार्ट होता है एक अवार्ड सेरेमनी से। आपने अवार्ड दिया था? नहीं, दे सरमत
सरमद से सरमद बड़ी खूसट। शक्ल मिलती है ना मुसद्दे की। हाँ सरमद खूसट या मैं सरमद शक्ल भाई। मिलती है सरमद आई नो सरमद खुसट से बहुत रिजेम्बलेंस है हाँ। मुसद्दे की, बिल्कुल। क्लीन शेव करूं तो मैं बिल्कुल सरमद हूं। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको Tappu भी लगा। Javeri came to me on Kambli Ka Prem is like very nice film, and I'm like yeah, but he made it. Yeah, I know. तो वो इसलिए 3 की शक्लें मिलती हैं। तो शुरू में उसको अवार्ड मिला, राइटर अपनी कहानी सुना रही है, तो अब वो कहानी शुरू हुई है। Yes. तो अब ये फेज 2 है ऑफ द स्टोरी, वहाँ से हम शुरू हो गए हैं और शुरू हुआ हरासमेंट जो उसको लगी और उसका गिव अप कर देना, क्योंकि वो आता ही नहीं है, ये बाहर की दुनिया जो मलिका के लिए नहीं है, और उसकी स्ट्रगल और उसका कैसे इसमें एडजस्ट करना, सेट हो जाएगी। हाँ लेकिन ऐसा जो है ना, आपको एम्प्लॉयर मिलता नहीं है। जो घर आके बड़ी गुड एक्टिंग थी वैसे हाँ, जामिन की, जामिन। गुड एक्टिंग, लेकिन इसको ये हमने ऐसे किसी मिलेगा और नहीं। ड्रामे में देखा है। हाँ, और उसने बड़ा अच्छा, मुझे वो सीन लगा जहाँ वो सबा कहती है ना कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, हाँ जिससे वो बात करती है, इतना प्यारा है वो अंदाज। हाँ पढ़ा, बहुत बोरिंग था, आपको खुल के बोलूं यू कांट हेल्प बट लव मल्लिका। हाँ। कितना प्यारा बोल रही हो, देखिए जैसे उसने, और हंस रही है, हाँ। मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पे एक चमक है, क्योंकि राइटिंग इज हर पैशन, फर्स्ट लव। Passion. रजा First love. सेकंड लव था, लेकिन उसने टेक ओवर कर लिया और इसको उसने साइड पे किया कि अब सिर्फ मुझे सोचो, समझो, लिखो, जो भी था, और इसने अपनी कहानियों Oh से my रजा को God. जिंदा भी रखना है। तो वो जो एक उसके चेहरे पे इतने अरसे बाद एक चमक आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना स्क्रिप्ट को, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, वो एक राइटर के ही उससे था कि देखिए आप देखेंगे चैनल बदल देंगे, बोरिंग था, ऐसे था, बट सो वेरी इंटरेस्टिंग। और डायरेक्ट भी अच्छा हुआ। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेस स्लो है, लेकिन ऐसा ही है, अब ऐसे ही चल रहा है बहुत अरसे से, और हम फिर भी इंजॉय करें। तो आई गिव 8 जंजीबिल को भी और हमारे डायरेक्टर को भी। Woohoo! Very proud of you, Zanju. Moving on to Sadia ji, what do you सादिया ने think? बहुत तफसील से इस पे बात कर ली, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जहाँ वो माँ को अन्नी आता है और वो ये दोनों बाहर बैठे बात कर रहे होते हैं, फिर माँ आ जाती है क्योंकि वो घबराती है, भाभी से भी बात हो रही है, ये हो रहा है। तो वो बहुत प्यारा मुझे वो सीन लगा जहाँ वो कहती है कि फ़िक्र ना करे, इस बेवा सब कोई शादी नहीं करने वाला और अपनी तरबियत पे भी शक ना करे। तो वो माँ जितनी उसकी, मतलब मुझे तो उस माँ से भी प्यार हो गया ना कि मतलब इन हालात में माँ क्या कर सकती है, कितनी वो अंदर से सहमी हुई, डरी हुई थी। ओवरऑल ये ड्रामा बेहतरीन जा रहा है। मलका का पहला दिन ऑफिस का, स्क्रिप्ट जिस तरह उसने कहा कि वो मज़े से स्क्रिप्ट का मिल जाना, घर में आके ताले, चीज़ें बंद करना, फिर स्क्रिप्ट पढ़ना, नींद, और फिर सुबह उठ के, वाकई मैं सबा इस बात पे को मुझे ये खुद में लिख के लेकर आई थी कि जो तुम्हारी आंखों की चमक थी ना, वो बता रही थी कि ये है, ये मैं करना चाह रही थी। और वो स्क्रिप्ट मिल जाना कि अब आप इसको लिखिए, और एक जुमले ने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी पलट के रख दी कि लड़की देखी नहीं तो, और तुम उठी और चली गई। मामू का समझाना कितना अच्छा था कि तुम पे जिम्मेदारी नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे, तो क्या तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम तो आगे चल के इन सब चीज़ों को फेस कर लोगी। तो वो एक अच्छा, फिर माँ का समझाना कि तुमने अभी नौकरी छोड़ी तो नहीं, कौन आता है घर के अंदर मनाने के लिए, वो तुम्हें घर तक मनाने के आगे, वैसे कौन आता है मनाने के लिए, हमें तो कोई ना आया, और हमने किसी के मुंह पे फ़ोन काटे भी नहीं।